of SBR Constructions. Got the captain of Sateri Cricketers. Toss time in the middle. Santosh will spin the coin. Sholim is the call, and it is Sholim. So Sateri Cricketers have won the toss, and they have decided to. We are going to field. Any specific reasons in fielding first? We have been all the full tournament. We have been chasing. I think this is the most important game, and we have to chase. We need to set them for a very limited target. Let's see. What kind of target are you looking to target? You are trying to achieve on this particular wicket. I think for us to, I think less than 50, that will be the best to chase for us, I guess, because no wind, nothing. Yes, you have got the fastest man in Goa with you, Gungru, and also some really good talents. How about his performance in this entire tournament? I think he is the one. He is the key player who has brought us here, and all my teammates, they have equally worked very hard. I want all the crowd. Please support our team. That's it. Sateri Cricketers is here for you all. Please show him. Thank you very much, and have a good one, mate. Santosh, no worries in winning the toss. What matters is winning the game. What kind of target are you looking to set on this particular deck? Uh, I think this is a very good batting pitch. So whether you means whether you means start the batting or you can chase, but here on this such a ground, so we can easy to bat also and chase also. So it is always good to. This is our first time, so we are batting. So we are keeping a good target for them, so that for our bowlers it will be easy. Talking about Mahesh's performance and also performance of Mr. Gavde in the team. Which player are you banking most on? Your Rathod brothers are also there in your team. What kind of target are you looking to set on this particular wicket? Target is more than 70 we are looking for, because we have a good bowling attack also, means and also the all rounder from the that Nitesh, he's a very good player, and also the Projot from both are a key player for our team, and always we are supporting them, so it's good for us that we are means supporting for the teams. Thank you and have a good one, mate. So news from the center. Sateri Cricketers have won the toss and they have decided to bowl first.
धन्यवाद श्याम। दूसरे सेमीफाइनल में चलते हैं। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला सातेरी क्रिकेटर्स टीम का। SBR कंस्ट्रक्शन टीम पहले बल्लेबाजी करे। रोशन स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर महेश पवार और गेंदबाजी के लिए गौरीश टाकवेकर। पहला मुकाबला क्या गजब का मुकाबला, 1 रन से वो मुकाबला जीता है। और पहली गेंद शायद खेलना चाहते थे, वहां पर गेंद लगी नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। पिछला मुकाबले के आखिरी ओवर जिस तरह से डाल रहे थे अक्षय, शायद ऐसा लग रहा था कि मैच कहीं रोहन सालगांवकर समाप्त ना कर दे, लेकिन आखिरकार 1 रन से जीती और फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम बन चुके हैं। ओ अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया शानदार गेंदबाजी। अगर लेग बिफोर के विकेट यहाँ पर नियम होता तो शायद ढेर सारे विकेट इस गेंदबाज के खाते में मिल जाते। सटीक यॉर्कर के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी। जिस तरह से इसके पहले मुकाबले में बहुत ही शानदार गेंदबाजी देखने को मिली थी और सटीक यॉर्कर की गेंदबाजी डाली गई थी, जो कि सेकंड लास्ट ओवर डाला गया था प्रदोष द्वारा। बहुत ही शानदार सटीक यॉर्कर, सिर्फ 5 रन खर्च करे थे उस ओवर में। ओ फिर एक बार लगातार, और ये भाई का क्या गेंदबाजी है। बल्लेबाज रोशन सिर्फ बल्ला घुमा रहे हैं गेंद के लाइन में आने से पहले, लेकिन गेंदबाज की तारीफ देखिए। जब शरीर पर गेंद लगे, आवाज यहाँ पर आ गई है, इससे पता चलता है कितनी तेज गेंदबाजी कर रहा है गौरीश टाकवेकर। आज पूरे फॉर्म में नजर आ रहा है इस मैदान पर। ओ यहाँ पर देखिए खुशकिस्मत रहे, वाइड का जरूर इशारा आएगा, लेकिन ये सटीक यॉर्कर था ये भी। श्याम कलगुटकर कृपया आइए प्लीज। ओ अच्छी गेंद, फिर एक बार चक्का रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट होता तो शायद वापस जाना पड़ता। यहाँ पर क्या फील्डिंग है, नाट्यमय घटनाओं से भरा रहा ये मुकाबला। पहला ही ओवर। Requested Madam Delilah Lobo is here. Emily Shulim constituency and Vice Chairman ESG. Madam, please take your seat on the dais. Back to you, Mr. Jay Bhosle. गौरीश टाकवेकर गोवा राज्य का एक स्पीड स्टार, तेज तर्रार गेंदबाज, ऑलराउंडर खिलाड़ी, काफी अच्छा प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में रहा है इनका। और इस मुकाबले में देखिए किस तरह से गेंदबाजी करे। टॉस जीतने के बाद हमने गेंदबाजी करने का फैसला क्यों लिया, ये यहाँ पर बताता है ये गेंदबाज इस मैदान पर। ओ ये बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पूरी तरह से खोल कर रख दिया था बल्लेबाज को। इन मौके पर बल्ला नहीं नीचे आता तो यहाँ पर गिल्लियां बिखर जाती। क्या गेंदबाजी कर रहे हैं भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, काफी प्रभावित कर दिया है सभी को। दर्शक भी काफी खुश हो रहे हैं इस क्रिकेट के माहौल को देखकर इस मैदान पर। बहुत ही शानदार गेंदबाजी। एक तरफ ऐसा लगता है कि बल्लेबाज गेंदबाजों पे हावी होता है, लेकिन इस गेंदबाज ने तो बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाए मैदान पर। ओ इस बार शायद आवाज तो जरूर आई है, देखना वाइड का इशारा अंपायर का, यानी कि बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं है। बल्ला यहाँ पर घसीटा गया पिच के ऊपर, वो आवाज यहाँ पर निकली थी। वाइड और अतिरिक्त रन के साथ टोटल 3 रन बगैर किसी नुकसान पर। दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला इस मैदान पर जारी, और दूसरे मुकाबले में देखना कितने रन बना पाते हैं। ये ओवर है महत्वपूर्ण, क्योंकि इस ओवर में रन नहीं बने तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 5 ओवर अभी आपके पास और पड़े हैं। लेकिन महेश पवार का विकेट काफी महत्वपूर्ण है। आगे निकले खेलने के लिए, मैंने पहले ही कहा था ये विकेट महत्वपूर्ण है। कैच ड्रॉप हो गया,
भाई कहीं ये आपने क्या कर दिया भाई साहब। मैंने कहा था ये विकेट महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए, आपने ये हाथ या लड्डू जमीन में दान कर दिया। कहीं आपने ये कैच नहीं मैच छोड़ा हो, इस तरह से प्रतीत ना हो आने वाले समय में। अक्सर कहा जाता है क्रिकेट में, जीत ले लो कैच जीतो मैच, छूटा कैच हारा मैच। देखता है पहला ओवर समाप्त, पहले ओवर का खेल समाप्त। सिर्फ 3 रन स्कोर बोर्ड पर, विकेट जरूर मिल जाती लेकिन क्या कहने गेंदबाज के, बहुत ही शानदार। और दूसरा ओवर डालने के लिए गेंदबाज धनेश आउटे। ओ जमीन के सहारे रॉकेट स्ट्रोक यहां पर खेल दिया मैदान से, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आकर मैदान पर गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन और खाते में। पहली गेंद पर सिंगल, टोटल स्कोर बोर्ड पर 4 रन बगैर किसी नुकसान पर। एक जीवनदान महेश को मिल चुका है। अब यहां से महेश किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे, तोड़ फोड़ वाली बल्लेबाजी करते हैं। चलिए ये देखिए, ये मारा कम घसीटा ज्यादा, जले के ऊपर नमक छिड़कना इसे कहते हैं मेरे भाई। ये लगा सिक्सर, दे दनादन छक्का। क्या शॉट है, जिसने कैच छोड़ा है ये छक्का बार बार लगातार सपने में रात को जरूर आएगा। क्या शॉट लगाया था। 6 रन टोटल, डबल फिगर में 10 रन पर मुकाबला हो तो इस तरह का हो। ये अल्टी पल्टी वाला शॉट, फिर एक बार मौका, कैच की संभावना, आया दूसरी बार। ये भाई हमेशा होता और थ्रो, बौखला गई है टीम मैदान के अंदर। क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। सेमीफाइनल का मुकाबला, दबाव साफ झलकता हुआ मैदान पर। हमेशा कहा जाता है आपका दिन खराब हो तो पेड़ के ऊपर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ये कैचेस बार बार दिखाए जाएंगे, कैचेस हाथ से छूटे हैं मैदान पर। टोटल रन 11 पर। रोशन और महेश, महेश की 5 उंगलियां घी में। ओ यार करलेंग की गेंद बहुत ही बढ़िया, रन के लिए निकले, रन आउट का खतरा हो सकता है लेकिन थ्रो वाइड। 1 रन और खाते हुए। फील्डरों के समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या करे तो आखिर करे क्या। मैदान पर क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है। 2 कैचेस अब तक छूट चुके हैं पिछले 4 गेंदों में और महेश पवार स्ट्राइक पर। महेश के ऊपर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी का एहसास है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, धनेश आउट है। लगभग फंसा ही लिया था इसके पहले गेंद पर महेश को, लेकिन इस बार नहीं। इस बार वहां पर डॉट गेंद के साथ ओवर आगे लेकर जा रहे हैं। 5 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और यहाँ पर बाइटक स्ट्रोक, फिर एक बार डी स्क्वायर लेग की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर गेंद को जब तक फील्ड करते 1 रन और खाते में, स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 13 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर में निकले 10 रन। और गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है गेंदबाज सिद्धेश को। पहले 2 ओवर में नाट्यमय घटनाएं घटी है मैदान पर। अब यहां पर देखना है, महेश पवार को 2 जीवनदान मिल चुके हैं। यहां से अब अपने 5वें गेयर की बल्लेबाजी जरूर करेंगे, अपने टीम के लिए एक अच्छा टोटल खड़ा करेंगे इस मैदान पर। देखना है क्या करते हैं यहां पर सिद्धेश गेंदबाजी के लिए। ओ इस बार कुछ इंच दूर से लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा आता अंपायर का। अतिरिक्त सिंगल, तीनों स्टंप दिखाई दे रहे थे गेंदबाज को,
लेकिन सटीक निशाना नहीं। गेंद थोड़ी सी लेग स्टंप से बाहर, कुछ इंच दूरी से गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। एक छक्का लगाए अब तक, वो भी लगाए महेश पवार के बल्ले से। अब फिर एक बार गेंदबाज सिद्धेश तीसरा ओवर डाल रहे हैं। फिर एक बार लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा, 2 लगातार वाइड गेंदे, टोटल पहुंचा है 15 रन पर। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से इस प्रतियोगिता को यूट्यूब पर दिखाया जा रहा है। लगभग 192 कंट्रीज में इस प्रतियोगिता को लाइव दिखाई जा रहा है और दर्शक भी आज के इस अंतिम दिन के लिए इस मैदान पर काफी सारे उपस्थित, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जो अतिथिगण आ चुके हैं उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत कमेंट्री बॉक्स से। लेकिन ये सेमीफाइनल का मुकाबला, पहला मुकाबला जिस तरह से उसी नक्शे कदम के ऊपर चल रहा है ये मुकाबला। फुल टॉस गेंद, हवाई फायर, चलिए गेंद चली रॉकेट की तरह, लेकिन मिलेंगे वहां पर 2 रन। 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ेगा जरूर। ये चौका, 4 रन मिले हैं चौके के साथ, टोटल आगे बढ़ता हुआ। दूसरा कैच छूटा, उसके बाद चौका लगा है, यानी कि यहां से जितने रन महेश बनाएगा वो कांटा जरूर चुभेगा सातेरी क्रिकेटर्स के खेमे को। 19 रन स्कोर बोर्ड पर, 19-20 का मामला हम हमेशा कहते हैं। ये छूटे हुए 2 कैचेस ये 19-20 का मामला पैदा कर सकती है मैदान पर। चलिए टाटा गुड बाय, खत्म, सी यू लेटर। और एक बड़ा शॉट 6 रन के लिए। महेश के 2 कैचेस क्या छूटे, शायद महेश बता रहा है मैं अंधेरों से डरने वाला नहीं हूं। वो अंधेरों से क्या डरेगा, खुद रोशनी की मशाल बनके मैदान पर उतरा हो और यही बल्लेबाजी मैदान पर कर रहा है। पूरी श्रृंखला में प्रभावित बल्लेबाजी करी है महेश पवार ने। और फिर एक बार गेंदबाज निकलते हुए गेंदबाजी के लिए सिद्धेश। ओ इस बार उठाकर खेला हवा में जरूर, लेकिन बॉक्सर से दूर। गेट डिक्लेयर जोन में एक रन मिलेगा। 1 रन के साथ टोटल 26 रन स्कोर बोर्ड पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है। अभी भी इस ओवर के बाद 3 ओवरों का और खेल शेष रहेगा, लेकिन तब तक ये जोड़ी कितने रन बनाती हुई नजर आएंगे। रोशन का बल्ला अभी खामोश है। रोशन को भी इस बहती गंगा में हाथ धोने हैं। यहां पर बल्लेबाजी उनको करनी है अपने टीम के लिए। रोशन चौहान, ओ नहीं, इस बार रोशन के बल्ले को लगी नहीं गेंद। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 27 रन स्कोर बोर्ड पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला जो कि किया है सातेरी क्रिकेटर्स टीम ने इस मैदान पर। लेकिन अगर बात की जाए इस मुकाबले की, तो गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करी है, लेकिन फील्डरों का उस तरह का साथ नहीं मिला है गेंदबाजों को। अगली गेंद सिद्धेश फिर एक बार सामना करेंगे महेश। ओ ये देखे शॉट कमाल, धमाल, दे मिसाल, दे दनादन, छक्का पकड़ना चाह रहे थे चरण, हो गए सीमा रेखा के दर्शन। 6 रन।
33 रन स्कोर बोर्ड पर। मैं नहीं रुकूंगा, यही कह रहा है महेश मैदान पर। फिर एक बार तू डाल डाल, मैं मार मार, तेरी और मेरी और तेल लेने गई दुनियादारी। 6 रन टोटल पहुंचा 39। क्या क्या रन, क्या रन बने हैं। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन, 2 वाइड और 1 सिंगल। उसके बाद 3 ओवर बाकी हुई, 2 ओवर में देखिए रनों का भंडार। और इस बार बल्ले के बाहरी किनारों को लगे। रोशन अच्छा काम कर रहे हैं, सिंगल लेकर महेश को स्ट्राइक दे रहे हैं और बाकी काम पूरा कर रहे हैं महेश पवार। धनेश आए गेंदबाजी के लिए। अपने कोटे का दूसरा टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर टोटल अब पहुंचा है 40 पर। महेश गेंदबाजी के मोर्चे पर अब क्या होगा। यहां पर आपने इनका कैच छोड़ा है तो ये जरूर मारते रहेंगे और अभी तक तो इनका बल्ला चल रहा है मैदान पर। आप अगर इनको आउट करना चाहते हैं तो कुछ अलग किस्म की गेंदबाजी आपको करनी पड़ेगी इस मैदान पर। ओ ये ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त और 1 सिंगल। अतिरिक्त सिंगल के साथ 41 पर पहुंचा है टोटल 41। ऐसा लग रहा था पहली ओवर में जिस तरह से गेंदबाजी हुई शायद 50 का आंकड़ा मुमकिन नहीं होगा 6 ओवर में, लेकिन ये चौथा ओवर है जारी। ओ इस बार हवा में खेल बैठे गेंद शायद कान के नीचे वहां पर लगी थी। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। यहाँ पर एक टीम फाइनल में जाकर बैठी है, इंतजार कर रही है दूसरी टीम कौन सी होगी, फाइनल में हमारे साथ लड़ने के लिए मैदान में कौन उतरेगी। लेकिन उससे पहले ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला, रंगीन मिजाज से भरा हुआ ये मुकाबला, नाट्यमय घटनाओं से भरा हुआ ये मुकाबला। देखना है अब मुकाबले में क्या बचा है। फिलहाल तो महेश 1 मैन आर्मी मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओ ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर पर सीधी निकली विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। वो कैच अगर ले लेते तो शायद ये रन नहीं बनते, वो 4 छक्के नहीं लगते। और वो 4 छक्के अगर यहां से माइनस किए जाते तो मैं कहता 17 रन मात्र होते स्कोर बोर्ड पर। ओ इस बार बल्ले के अंदरूनी किनारे को लगी। अब तक ये और अच्छा घटा है। गेंदबाज अब तक 4 गेंदे डाल चुका है, 2 रन खर्च कर चुका है। धनेश आउट है। पहले अपने पहले स्पेल के पहले ओवर में भी 1 छक्का डाल दिया था, 10 रन मात्र दिए थे, लेकिन अच्छा ओवर डाला था वो भी। फिर एक बार बड़ा शॉट, ये बैठक स्ट्रोक, ये 6 रन, ये जले के ऊपर नमक। जितने छक्के लगते हैं, छोट कैचेस जिन्होंने छोड़े हैं उनके खाते में लिखे जाएंगे। टोटल पहुंचा है 47। ओ ये दबाव में फिर एक बार वाइड का इशारा। अतिरिक्त रन के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ 48 रन स्कोर बोर्ड पर।
अब स्कोर में तेजी जरूर पकड़ी है। महेश पवार के बल्ला जोरकस बल्लेबाजी कर रहा है मैदान पर, रन बन रहे हैं आसानी के साथ। धनेश आउटे के ऊपर धावा बोला है कि सब अच्छी गेंद, यॉर्कर लेग की गेंद, इसको खोद कर निकाला, एक रन जरूर निकलेगा। एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 49, 49 रन पर ओवर समाप्त होता हुआ चौथा, 4 ओवरों का खेल समाप्त, 49 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर कहीं नुकसान। यहाँ पर 2 ओवर में 10-10 रन खर्च करे धनेश आउटे ने। एकमात्र पहला ओवर गौरेश का रहा था 3 रनों का। सिद्धेश ने अपने ओवर में 26 रन दिए हैं। बहुत महंगा ओवर वो निकला उनका, और जिसके चलते हुए स्कोर में तेजी पकड़ी है। यहां से अब 12 गेंदों का खेल बाकी, डेथ ओवर जिन्हें कहा जाता है। यहाँ पर बल्लेबाज सिर्फ बल्ला घुमाता है, रन बनाने की कोशिश करता है, और वो 12 गेंदे डालेंगे कौन। गेंदबाजी में और एक बदलाव, और गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं प्रदीप। ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे। ये 12 गेंदे काफी महत्वपूर्ण। अगर इन 12 गेंदों में महेश की विकेट निकली तो वापसी करेगी कुछ हद तक साधने वाली सातेरी क्रिकेटर्स की टीम, वरना एसबीआर कंस्ट्रक्शन का तो अब तक रहा है मजबूती का पक्ष। रन मैदान पर बनते हुए रन 49 रन बगैर किसी नुकसान पर। ये गेंद फिर एक बार घुमाना चाहते थे, जितने सफल हो जाएंगे वाइड के रेखा उतनी ही दूर निकलेगी। डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत कर रहा है गेंदबाज। अब यहां से आपको कुछ ना कुछ करना है, वरना भाई मुकाबला आपके हाथों से बहुत दूर निकल जाएगा। अगर ये टोटल 70 के ऊपर चला गया ना, तो वो बनाते बनाते आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डॉट गेंद, बिंदी गेंद के साथ ओवर की शुरुआत की है प्रदीप ने। ओ इस बार देखिए थोड़े से सफल हो चुके थे, लेकिन बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं। दूसरी गेंद डॉट निकली है, सटीक यॉर्कर डालने की कोशिश, अब तक कामयाबी हासिल होती हुई। महेश को खामोश रखा है वहां पर प्रदीप, जो कि गेंदबाजी कर रहा है। 2 गेंदे अब तक डाल चुके इस ओवर के। फुल टॉस गेंद, चलिए टाटा गुड बाय, सी यू लेटर। इसके साथ 50 रन भी पूरे होते हुए 55 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। एसबीआर कंस्ट्रक्शन के 50 रन पूरे, 55 विदाउट लॉस। फुल टॉस यानी कि रनों का लॉस, और ये लॉस हो चुका है सातेरी क्रिकेटर्स टीम को। 6 रन और खाते में 55 पर पहुंचा टोटल 55 बगैर किसी नुकसान पर। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं मैदान पर। जीवनदान का फायदा उठाना किस तरह से सीखना हो तो महेश की बल्लेबाजी से सीखिए। फिर एक बार फुल टॉस गेंद, कैच की संभावना, इस बार कोई गलती नहीं। मिड विकेट पर वहां पर सिद्धेश ने कैच को लपका, आखिरकार विकेट निकली है महेश पवार की। 20 गेंदों का सामना किया और 44 रन बनाकर आउट होकर वापस निकल रहे हैं। आउट स्टेशन खिलाड़ी आए हैं नए बल्लेबाज नितेश कांबड़ी। ये इनके स्ट्राइक गेंदबाज है और अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं। पिछले मुकाबले में धुआंधार बल्लेबाजी इन्होंने करी थी। अब आए हैं महेश की जगह लेने के लिए। 55 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर 55।
ओ आते ही इन्होंने हाथ खोले हैं। 6 रन बहुत दूर, 6 रन के लिए चिमनी उड़ा ली बुर्र। और एक ये ऊंची है, क्या दूरी है, गौरेश नागवेकर, ओ कैच ड्रॉप हो गया है, सेफ हैंड यहां पर, लेकिन उनके हाथों से कैच छूटा। गौरेश नागवेकर उतना आसान नहीं, ये ऊंची थी गेंद। यहां पर ओवर समाप्त हो गया है। यहां पर 5 ओवरों का खेल समाप्त, 1 रन निकला टोटल स्कोर बोर्ड पर। 62 लॉस ऑफ 1 विकेट, लास्ट ओवर टू गो, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। संजय राठौड़ सामना करेंगे नीतीश कांबड़ी। एक जीवनदान, एक छक्का, आते आते 2 गेंदों में 7 रन बनाए हैं और ये 6 गेंदे काफी महत्वपूर्ण टोटल स्कोर बोर्ड पर लगे हैं। 62 लॉस ऑफ 1 विकेट, ये 6 गेंदे में कितने रन बनते हैं, कितने रनों का लक्ष्य होगा सातेरी क्रिकेटर्स के सामने, देखने वाली बात जरूर है। ओ स्लोअर वन डिलीवरी, फिरकी गेंदबाजी, और फिरकी में थोड़े से फंसते हैं नीतीश कांबड़ी, जानते हैं संजय, और थोड़े से विपरीत गेंदबाजी करने की कोशिश शायद मिडल स्टंप के ऊपर करते तो बड़ा शॉट खेलने के लिए जाते हैं, ये खोद कर निकालना जानते हैं गेंद को। ये छोटी गेंद करी थी, थोड़ी सा मिश्रित गेंदबाजी, पुलर लेग की गेंद, और जहां पर चकमा देने में कामयाब। 5 गेंदे अभी भी बाकी इस ओवर की। ओ फिर एक बार चकमा दे दिया। 2 गेंदे डॉट निकाली है संजय ने आते आते। ये लोअर फुल टॉस थी, लेकिन गेंद और बल्ले का वो संपर्क हुआ नहीं। अब कुछ हद तक वापसी करी है, शायद जिसने पहला कैच छोड़ा, उसके बाद जिसने दूसरा कैच छोड़ा, वो 44 रन जो महेश पवार ने बनाए, वो कांटे के जैसे चुभेंगे उनको लिए। Now we have graced the presence of Shri Shripadya Sonaik. A big round of applause to our guest. He is already on to the dais. So please take your seat. Thank you. Back live again to Jay Bhosle sir. और यहाँ पर देखिए हड़बड़ाहट में जहां पर विकेट मिल सकता था वहां पर 2 रन भी बने और स्ट्राइक पर नितेश कांबली भी आ गए। जिनसे बचना चाहते थे उनको ही फिर आप स्ट्राइक के ऊपर ले आए हो। इसलिए कहा जाता है क्रिकेट में अगर मगर का कोई स्थान नहीं होता। अगर मेरे चाची को मूछें होती तो मैं उसे चाचा कहता, ये कहने वाली बात है। ये रनआउट करने की कोशिश नाकामयाब रही वहां पर। ओ ये निकल गए, ये 6 रन के लिए, ये चाबुक शॉट, ये है थप्पड़ शॉट, गूंज निकली है 6 रन की। पहुंचा 70 पर, 70 का आंकड़ा पूरा कर दिया है। ओ ये स्विंग एंड मिस, बहुत ही बढ़िया वापसी है। इस ओवर में अब तक की बात की जाए तो 1 छक्का और 8 रन खर्च करे हैं अब तक 5 गेंदों में। बहुत ही गेंदबाजी अच्छी करी है यहाँ पर संजय राठौड़ ने। वो चांस था रनआउट का, अगर वो रनआउट होते तो ये छक्का बच जाता। हर एक रन महत्व, क्योंकि पिछला मुकाबला आप याद करिए 1 रन से वो मुकाबला हारी थी सामने वाली टीम।
ओहो उड़ा दिया। हाय हेलो हैंडसम शानदार जानदार और दमदार सिक्सर। आखिरी गेंद पर यह लगा है छक्का। टोटल पहुंचा 76, 76 रन और जीतने के लिए रन चाहिए 77। मुकाबले की अगर बात की जाए, ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला। ये दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला यहां पर जारी है और 77 रनों का पीछा करना है। कौन सी दूसरी फाइनलिस्ट टीम हमें मिल सकती है इस मैदान पर? क्या यहां पर चमत्कार कर सकती है सातेरी क्रिकेटर्स की टीम? क्योंकि चमत्कार को नमस्कार करने वाली है क्रिकेट की दुनिया और चमत्कार बार बार यहां पर हुआ नहीं करता। क्या चमत्कार बल्लेबाज कर पाएंगे या दूसरी तरफ एसबीआर कंस्ट्रक्शन की टीम इन 77 रनों का रक्षण करने वाली सक्षम गेंदबाजी कर पाती है? ये आने वाले 6 ओवर बताएंगे और उसके लिए आमंत्रित करते हैं दूसरी इनिंग में अंग्रेजी में विवरण देने के लिए वॉइस ऑफ गोवा युवा कमेंटेटर श्याम कलंगुटकर को। धन्यवाद। Announcement about Hudo Beach Sports Club organizing second 7-a-side Panchayat Wise Interward Football Tournament. Only limited teams will be participating in this competition starting from 6 June 2024. Entry of rupees 1,500. Winners will take home rupees 25,000 plus a trophy. Runners up will get rupees 15,000 plus trophy. Venue for this particular tournament will be Hudo Beach Football Ground, Danda. If you need more updates about this, you can contact 9637 52 4935. Meanwhile, back live again for this second semi-final. One team already into the finals, and that is Boehm Limited. And now, match between Sateri Cricketers and SBR Construction. SBR Construction propelled towards 76 for 1 in their 6 overs. Talking about the batting, well, Roshan started off with just a few singles. He made just 5, but the star in the batting was Mahesh. Talking about his batting, he got dropped twice. First in the very first over of Gaurish Nagwekar. Fast delivery was dropped at covers, and then it was absolute carnage. We saw some fireworks in that batting. Plenty of sixes also provided by Nitish in the end. Talking about the bowling, well, talking about Gaurish Nagwekar. He bowled a superb over. Would have got rid of Mahesh, but not to be. Just gave 3 runs in the first over. Apart from that, Dhanesh gave 20 runs in his 2 overs. Was also the pick of the bowlers. Apart from that, everybody was taken to cleaners. So 77 will be the target required for Sateri Cricketers. Shortly we'll have the run chase.
Dhanesh Apte along with Sanjay Rathod in the middle for the pursuit of 77 runs in 6 overs. With the ball, it will be Nitesh Kamre from the commentary box end. 77 required in 6 overs. Requested Shri Mohit Sopdekar to please take his seat on the dais. Up and over. Oh, the infield. Fielders after the ball. Will just pull it back. And a couple of runs taken to get at the mark for Dhanesh Apte. One of our prime sponsors, Shri Mohit Sopdekar, has also arrived, requesting him to please take his seat on the dais. Requesting Viraj if he can please escort our guest onto the dais. Thank you. Swing missed. Just that anybody watching the game first time would be saying why the bails are blinking. Just that there is some bit of a glitch in that bails. In case if you have joined just now, then this is Shuolim Constituency Premier League 2024 Season 2, organized by Shuolim United here in Shuolim. A big thank you to Shri Michael Lobo, MLA, Kalangut Constituency, Madam Delilah Lobo, MLA, Shuolim Constituency, Vice Chairman, ESG, our beloved Bhau, Shri Shripad Yeso Naik, Cabinet Minister. Up and over, in the air and gone. That's a big wicket. Sanjay has been getting runs and now has to depart for a golden duck. It's 3 for 1. .77 required in 6 overs. Currently 3 for 1. The Sathiri cricketers rocked early by that wicket of Sanjay. Meanwhile, change in the batting. It will be Pradeep Arlekar, new man in. I thought that Gauresh Nagvekar will be sent up the order, but he's been kept late, a bit later in the innings. Might be when a target of nearly 20 deliveries, 40 will be required. He might be very well used in the later half of the innings. Strong batting lineup this of Sathiri cricketers. We've got Dhanesh Apte in the middle along with Pradeep, who has just joined him. As far as the SBR are concerned, they are hunting in pairs at the moment. Good delivery in the air. Oh, just a falling shot. Oh, chance of run out. Directed. Seems to be fine. And the crowd has gone berserk. All the supporters of SBR Constructions. Looks like entire village is here in Shuolim. Making a lot of noise, supporting their team behind them throughout this entire tournament. And that's really good to see. Whenever India is playing in different parts of the world, you'll see many Indian supporters. Now India in America for the World Cup, definitely there will be plenty of support for Team India. And so is the support that is very crucial in any format of the game, any format, any sport, very crucial. Here's Nitesh Kamre again.
In the air, chance, fielder getting underneath and taken. Tallman takes that catch. And another wicket gone begging. Scarred it down the ground and timing his jump to perfection. Does Prajot Palyekar. Kalangud constituency signing for them and taking a wonderful catch to dismiss Pradeep. He's gone for a duck. It's 3 for 2, tottering at the moment, the Sateri cricketers. Talk about Kamit Dia, Kamit the champion, Kamit the man. Invokes Gaurish Nagvekar. Full toss delivery over the top. One bounce of the Rosso 4. Gets off the mark with the boundary. Score moves to 7. Full toss delivery. Gets the treatment. First over in progress, in fact. 1 over, done and dusted. 7 for 2 after completion of 1. 70 more required in 30 deliveries. 70 will be required in 5 overs. Required run rate of 14 runs per over for the Sateri cricketers. Change in bowling. Here's Prajot Palyekar into the bowling attack. And he'll be bowling from the commentary box end. Here's Prajot to Danesh. Nicely bowled. Slow delivery is fallen over. Oh, and the fielder has also fallen over. Bit of fumble. Comedy of errors. Batsman was on the floor first. Then the fielder trying to get him run out. That's 6. It's came back. Reverse swept. Half a dozen runs. Score moves on to 13 with that maximum. Sateri cricketers. Good delivery right in the block hole that time. Squeezed in. Will just be a single. Score moves to 14. Team winning will be reaching the finals. There are no second chances.
14 for 2. Needing another 63 in 27. Field has been set on the offside. Too much protection. That's a no ball and that's gone. Gone for 6. Half a dozen runs. Score moves to 21 with that maximum. Free hit time. Swing missed. Definitely that was headed into the bushes, but not to be. 21 for 2. So far this over has costed 14 runs of 4 deliveries. 2 more deliveries left in this second over. That's big. That's over extra cover for half a dozen runs. On the up, and again score moves to 27. Double the ask right now. 50 required in 25 deliveries. Unless and until these two men in the middle, definitely these Sateri cricketers will be up in for a chance in reaching the finals. Final delivery of the second over coming up. Swing missed. Dot delivery. Over costing 20 runs. So after completion of 2, it's 27 for 2. 27 for 2 after completion of 2 overs. Needing 50 in 4 overs for Sateri cricketers. It will be Mahesh Pawar into the bowling attack. Batted really well today. Just need to deliver with the ball. Full toss delivery. And will just be a single. It's a no ball as well. Looks like overstepping. Yes, definitely. Score moves to 29. 48 required. So this will be a free hit. And you just don't want that man, Gauresh Nagvegar, back on strike. So free hit
Up against that man, Gauresh Nagwekar. Change of angle for the bowler. Will be coming round, in fact, over the stumps. Free hit. Where is this free hit headed? Where is this delivery headed? Or Mahesh has some other plans. That's big. Can I catch that one? Just ahead of me. Right in the commentary box. Maximum. So free hit has been utilized with the maximum. Over the long on set for 6. Score moves to 35. Needing 42 in 23. Asking rate started at 14 runs per over, has just gone down to 10.96. Change of angle for the bowler. This time bowls it away and it will be a wide. More extras. Just one delivery bowled and 9 runs have been scored. Nicely played down the ground. A mini helicopter down to Nitesh will just be a single. Score moves to 10. Just that the SBR construction will be looking after. Why don't we just give off strike to Gauresh Nagwekar and give as much as strike possible to Dhanesh Avte, as he's been just maneuvering the ball around. Full toss, missed. Directed would have been gone, I suppose, but not to be. Dot delivery. 40 deliveries, 21 runs. In fact, 40 runs and 21 deliveries. Beg your pardon, apologies. I'm also feeling the heat in the commentary box. Down the leg side and will be wide. More extras. Score moves to 38. (39 in 21). Full toss down the ground and will clear everyone. That's 6. Nicely played. Score moves to 44 with that maximum. (33 in 20). Pulled away in the air. And really good effort from that fielder. Saving a certain boundary for his team. Just a single taken. That's big. That's again into the deep mid wicket fence for 6. Score moves to 51 with that maximum. Inching closer towards the target of 77 are these Aderi cricketers.
for Satiri cricketers. Definitely the run chase is just lit up after that arrival of Gauresh Nagwekar. Change in bowling. It will be Mandar Mandrekar from the commentary box end. Just that Dhanesh Avte was batting on 11 of 6. Now has gone past 18 of 9. That's big. And that will be 6. Humongous hit over mid-wicket this time by the left-hander. Hitting 20 in 17 now. Definitely match in the bag for the Satiri cricketers. Often we have seen strategic timeout produce wickets. The game just shift into the other team's favor. What will happen next? 20 required in 17 deliveries. No proper timing on that one. Down to deep mid-wicket will just be a single. 19 required in 16 deliveries. (19) required in 16 deliveries now. Nicely played over covers, and that will be 6. A tracer bullet over the sweeper cover for 6. Shot over extra cover. Score moves to 64. Needing 13 runs now in 15 deliveries. Definitely Gauresh Nagwekar will be eyeing for that fastest 50 of the competition and also the remaining runs that are being asked for. Full toss, down the ground, nobody there. And that's 6 more. Another hit, another 6.
Score moves to 70, just needing 7 runs now. Well, this over has already produced 19 runs of 4 deliveries. Good delivery, lets it go. And will be a dot ball. Hallmark of a good batsman, leaving the good delivery. 7 required in 13 deliveries now. A helicopter. And will it land in the hands? Oh, dropped. Chance gone begging. Prajot dropping that catch. And chance gone begging for the SBR Constructions. 71 for 2 after completion of 4 overs. He's batting on 42 at the moment of just 11 deliveries. So final over coming up and needing 6 runs to win. In fact, 12 deliveries left and 6 runs to win. He's batting on 42 of 11. Maybe a simple equation for him. Get a boundary first and then hit a maximum to complete your half century. No. That's big. And that's 6. And with that, victory for the Sateri cricketers. Lost the 2 wickets early and then came the storm of Gaurish Nagwekar. 48 of just 13 deliveries. 1 boundary and 7 humongous hits. Strike rate of 369. Pradeep bowled well for his 1 over for 13. Sanjay Rathod bowled a good over as well for just 14 runs. Danesh Avte and Siddesh Gadekar were taken to cleaners. Apart from that, talking about the run chase, struck early. It was 3 for 2 in the very first over. In came Gaurish Nagwekar and got a partnership along with Danesh Avte. Danesh Avte made 25 of just 11 deliveries and his partner Gaurish Nagwekar made 48 of 13 deliveries. Getting this target done and dusted within 4.1 overs. Sateri cricketers winning this game and moving into the finals.